Hello everyone. Today I will throw light on one of the most important topic of your B.Ed course, that is school management. As we all know that B.Ed is a professional degree program and the motive of which is to prepare students to work as a professionally trained teachers. And it's not only the motive is not only to inculcate good teaching skill but also how to work in the administrative aspect of an education system, or we can say institution. So for that, we need to know about school management, because it's not enough being a teacher to teach effectively, and but we should also have knowledge of managing things in school. So we should also have manager quality. So let's start with the main topic, that is school management. The word school management is comprised of two words, that is school and management. So there are two different words, school and management. As far as the meaning of school is concerned, school is basically derived from the word Greek word which is skol, which means layer, to pass free time. Or we can say it's a place of learning or discussion or a meeting place for teachers and students. So in Latin, it is also called as schola, secta, and ludus. So where schola or school, it is also pronounced as school or sector. It refers to the secondary schools, whereas ludus refers to elementary school. And in general, we also call school as a mini society, or a place where all the students sit together under the same roof on the same decks, or we can say floor, and learn from the same teacher, irrespective of caste, color, and creed. So, school is basically what? It is a mini society. And now comes school management, means other word that is called management. Management is comprised of the three words, main words: manage plus man plus T. That means to handle or to deal with the men in a tactful way, or we can say to control the people in a tactful way. So management means the control on the people in a tactful way. It is a universal process of getting work done from people. See, it coordinates human and material resources. So it we can say it is an art of knowing exactly what you want as a manager man to do, and then seeing that they do it at the best economical way. Now, school management is a means to placing the right person at the right place and in the right manner, or we can say that it is concerned with human resources, material resources, ideas, and principle. Whereas human resources means what, whosoever, like आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके प्रिंसिपल, आपका स्टाफ, आपका बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, इंस्पेक्टिंग स्टाफ, ये सारा आता है. वेरएज मटेरियल में आपका जो है, इट कम स्कूल बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइब्रेरीज, लेबॉर्ट्रीज, वर्कशॉप. आइडियाज़ में आपकी एक्टिविटीज़, आपकी इवेल्युएशन, आपका वे, आपका टाइम टेबल, आपका डिसिप्लिन. Now comes school management, internal or external management. Internal management is a directly involvement of the management in the management program. That is staff, principals, clerks. And whereas external means it is indirect involvement in of the people or the staff, जो external bodies हैं, in managing the इंस्टीट्यूशन, दैट इज पेरेंट्स, एक्सपर्ट्स, दे नेवर इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द स्कूल. तो ये एक्सटर्नल आपका रहते हैं. सुपरवाइजर्स हो गया, जो आपको सुपरवाइज करने आते हैं, या कुछ और एजेंसीज फ्रॉम बोर्ड जो होती हैं, दैट इज एक्सटर्नल. नो कम स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट. स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट जो है, वैसे ये प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, आपका स्टाफिंग, दिस इज अ प्रोसेस. एंड देन आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, कोऑर्डिनेशन है, गाइडेंस है, कोऑर्डिनेटिंग है, स्टाफिंग तो पहले बोल दिया, एग्जीक्यूटिंग, इवेलुएटिंग एंड इनकरेजिंग. इट्स अ प्रोसेस, ये चलता है. बट प्लानिंग मीन्स आप कैसे प्लान करते हो. इट इज़ अ टू गेट रेडी बिफोर हैंड, ओवरलैपिंग ना हो. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इज द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द पर्पज ऑफ इंटायर प्रोग्राम, ताकि क्रिएटिविटी, सूटेबल इन्वायरमेंट सेटअप करना, सारा कुछ. बजटिंग तो हम जानते हैं, नो वर्क कैन बी डन विदाउट बजटिंग, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है कि आप कितना पैसा यूज़ करेंगे अपनी सिक्योरिटी को देख के. स्टाफिंग हो गया, आप अब जो स्टाफ रखते हैं वो आप वेल क्वालिफाइड है, उसकी अरेंजमेंट करना, उसकी रिक्रूटमेंट करना, ये सारा आपका उसके अंदर आता है. Direction is very important, because without direction you cannot run any school. And then is your
जो कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. नाउ कम ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल मैनेजमेंट टू अटेन एम्स ऑफ एजुकेशन. ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ले डाउन करते हो कुछ एम्स जो आपको उसको जो है अटेन करना पड़ता है. कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करते हो. दूसरा कि कंपोनेंट्स और विंग्स जो हैं एक्टिविटी वो सारे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वेस्टेज ना हो इसलिए आप, ओवरलैपिंग ना हो इसलिए आप वो भी चेक करते हो. देन आपका क्रिएटिंग सूटेबल इन्वायरमेंट, आप एक उचित वातावरण का निर्माण करते हो ताकि बच्चों के हित के लिए, ताकि अच्छे से ट्रेन कर सके और ट्रेन टीचर्स भी अच्छे से पढ़ा सके. देन स्कूल फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हो कि हमें स्कूल में क्या करना है, प्रोग्राम्स कौन से रन करने हैं, एक्टिविटीज़ कौन से रन करने हैं. इफेक्टिवनेस लाने के लिए आप ह्यूमन मटेरियल रिसोर्सेज को, पनिशमेंट, इवैल्यूएशन, सब चीज़ों को देखते हो. रिसर्च में आप क्या करते हो, जो भी समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि इनमें हमें अब एक्शन रिसर्च, जैसे आपने स्कूल में जो देखा है चीज़ों को, जो आपको लगता है प्रैक्टिकली नहीं हो पा रही हैं, तो आप उस पर एक्शन रिसर्च करते हो, कंडक्ट करते हो, देखने के लिए कि आप इनको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो या इनको सॉल्व कर सकते हो. रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करना वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वो बेनिफिट देता है और आपके रिजल्ट्स बेटर आते हैं. आपने देखा होगा, कभी हम बात करते हैं तो एक स्कूल दूसरे से ऊपर क्यों है, टीचर्स अच्छी हैं, लेकिन आप सिर्फ टीचर के अच्छे पढ़ाने को स्कूल मैनेजमेंट नहीं कह सकते, बिकॉज टीचर का अच्छा पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो टीचर को एज अ मैनेजर स्कूल में निभानी है और वो उसको आनी चाहिए. सो आइडियाज़, आपके प्रिंसिपल, आप किस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, आप मटेरियल रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, इट्स अ प्रोसेस ऑफ लीडिंग द स्कूल टुवर्ड्स डेवलपमेंट थ्रू नॉट ओनली द optimum use of human resources, physical resources, principle and concept that help in achieving all the objective of school, but the proper coordination ये भी ज़रूरी है. एंड जो आपका कोऑर्डिनेशन है, आपकी अगर आपके बड़े जो है हेड हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है तो स्कूल आप कैसे रन करेंगे, वो कुछ बोलेगा आप कुछ बोलोगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन स्कूल. जो है आप अपने स्कूल को एक्सेल कराना चाहते हो तो उसके लिए यू हैव टू मैनेज ह्यूमन मटीरियल एंड योर आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स को भी आपने देखना होगा, क्योंकि विदाउट आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स आप सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज और मटीरियल रिसोर्सेज को कवर नहीं कर सकते. सो थैंक यू वेरी मच. दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो.